Yes. Okay, great. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. So today we'll start with fractions. Right. Okay, right. So first of all, who all know about like fractions? You can write whatever definition according to you is right about fractions. Okay. So before starting with fractions, we'll just go back to our previous like बचपन के कुछ like terminologies and कुछ operations के past, which is what we know like addition is what we already know from our childhood. Then subtraction is there, multiplication is there, and then this division is there. So in this division, you can see there's a demarcation, there's this line which is demarcating in between two dots. So these two dots, they represent two separate areas of like of an operation, which is the ऊपर वाला जो dot है, the upper dot, it represents numerator, and the lower dot represents denominator. So it can be replaced with a number. Okay, it can be replaced with any number, not okay, any number it can be replaced with. So this is basically आप बोल सकते हो कि ये डिवीजन का जो हम लोग अभी तक जानते हैं कि मतलब हम लोग को पता ही है कि डिवीजन कैसे दिखता है, like the symbol of division. So it's basically you can remember it like this as well. So ऐसे ही अगर हम लोग इसको नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं, for example we are replacing this with 1 and this with 2. Let's see what happens. तो ऊपर वाला हम लोग 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और नीचे वाला हम लोग 2 से रिप्लेस कर दिया. तो ये एक फॉर्म आ गया, दिस फॉर्म. ओके, या गुड आफ्टरनून ऑल, थैंक यू. सो दिस फॉर्म 1/2 ये जो आया है, ठीक है, तो ये आपका एक फ्रैक्शन बन जाता है. दिस इज व्हाट इट इज नोन एज फ्रैक्शन. ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, ठीक है. इतना तो हम लोगों को पता चल गया. सो we won't ever forget कि कैसे दिखता है fraction for that matter. So now let's see कि हमारे NCERT बुक में या फिर हमारे क्लास 6 के बुक में fraction को क्या बताया गया है. So fraction is a number representing a part of whole, ठीक है. A whole may be a single object or a group of objects, ठीक है. So basically आपको समझ आ रहा है, एक whole part का मतलब ये जो दो पार्ट का, टू पार्ट्स का, टू पार्ट्स में ये बताया गया कि टू पार्ट्स में वन पार्ट इट्स रिप्रेजेंटेड हियर. ओके, वन पार्ट इज रिप्रेजेंटेड हियर. तो ये बेसिक आपका डेफिनेशन हो गया फिर आपका, ठीक है. ये आपका फ्रैक्शन का बेसिक लाइक फंडा है, आप बोल सकते हो, ठीक है. सो नाउ इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल और एक फ्रैक्शन का नंबर से रिप्लेस करते हैं. ये ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर 5 है और नीचे वाला फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स 12, सो यू कैन कॉल इट एज लाइक 5/12. ओके, ऐसे भी बोला जाता है इसको. Okay, so this is how it's also mentioned. So if anyone knows like Hindi translation of whatever I'm saying, you can simultaneously write in the chat box so that it's easier for other people also to understand like words के like fraction क्या होता है, all of these things. Okay, so now fraction को आप लोग ये भी बोल सकते हो कि like we have understood कि एक part of whole, whether it can be an object as well, a thing or a region as well. Okay, तो अभी fraction का जो हम लोग अभी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है. अभी ये फ्रैक्शन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा. अभी फ्रैक्शन का अगर हम लोग एक बार डेफिनेशन पे जाते हैं, तो डेफिनेशन पे आपका आ जाता है कि अ पार्ट, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ होल, एक होल नंबर का पार्ट होगा, और वेदर इट्स एन ऑब्जेक्ट. ये जो थिंग होता है, ये होल थिंग मतलब होल नंबर या थिंग, तो इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और थिंग, रीजन भी आप बोल सकते हो, ठीक है. So now let's see what an object is. Object सबको like almost पता ही होता है. So object क्या होता है? एक material that can be seen or touched. Okay.
an object is any material that can be seen or touched. Seen or touched. ठीक है? Now let's see what a thing is. Thing वही होता है, एक object ही है, एक form of object ही है that no one need not or cannot or wish to be any specific name. मतलब ऐसा नहीं है कि ये देखना, मतलब it can also be seen or it can be touched, it can be any form. ठीक है? So this is about it. And then region तो सबको पता है. For example, I live in कोलकाता, so कोलकाता का half अगर represent करने की कोशिश कर रहा है कोई, या फिर कोई एक particular area, मतलब region का आप कुछ एक part के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हो. So you can represent in, मतलब you can represent fraction के तरीके से, fraction पे. ठीक है? So now अभी fraction हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत तो जान ही लिया कि क्या होता है. तो अभी इसमें भी ये पता चल गया कि फ्रैक्शन में आपका बेसिकली एक फॉर्मेट रहता है जहां पे एक न्यूमरेटर रहता है और एक डिनोमिनेटर रहता है. ठीक है? So now, anyone wants to mention anything, or if you think I'm missing out on anything, you can definitely raise your hand and you can mention it, or you can mention it in the chat box as well. अगर किसी को और कोई definition पता है अपने तरीके से, like आपको जो भी fraction के बारे में समझ आता है, you are always welcome to give your input in it. Okay? So now let's move forward. So अभी ना ये सारा आपका fractions के क्लासिफिकेशंस बोल सकते हो या पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब या फिर टाइप्स भी बोल सकते हो. ठीक है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अभी हम लोग देखेंगे. FR. ओके? FRSC. ठीक. सो नाउ यहाँ पे पहले टाइप पे आ जाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इम्प्रॉपर, देन मिक्स्ड. मिक्स्ड के ऊपर और एक आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, बट विच इज ऑल्सो लाइक थोड़ा सा आपका मतलब इम्प्रॉपर और प्रॉपर के एक बीचों बीच कुछ एक चीज है. तो I'll also explain that. ओके? आपका उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अगर क्लास 6 की बुक के तरफ से जा रहे, या फिर अगर हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहे हैं तो उसमें आपका इन रिवर्स फ्रैक्शंस आ जाते हैं, फिर आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस आ जाते हैं. ठीक है? सो नाउ विल जस्ट सी कि एक के बाद एक कि क्या होता है. If anyone has any question, you can always mention it, और अगर किसी को कुछ input करना है वो भी आप mention कर दीजिए. So now let's move forward and see what an proper fraction is. So now proper fraction. ठीक है? So proper fraction होता है एक fraction whose absolute value is less than 1. ठीक है? एक fraction जिसका whose absolute value is less than 1. ठीक है? Now, so basically यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि न्यूमरेटर is less than the denominator. मतलब ये जो न्यूमरेटर हमने बताया ऊपर वाला पोर्शन और ये जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर, ये हमेशा लेस होगा इनसे. ठीक है? दिस विल बी मोर. या ओके? सो पहले वाला एग्जांपल में ही हम लोगों ने देखा था 1/2. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये एकदम प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसका अगर हम लोग ट्रांसलेशन देखें तो ये तो ऑफ कोर्स 1 से कम ही आएगा. ठीक है? So now we will see कि improper fraction क्या होता है. Improper fraction. So improper fraction में वही कि opposite of what proper is. So improper में होता है कि denominator less होता है numerator से. So अगर numerator और denominator देख रहे तो denominator यहाँ पे less होता है numerator से. ठीक है? यहाँ पे आप ये फ्रैक्शंस को बोल सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है. एंड दिस एग्जांपल वुड बी आपका 15/11 फॉर दैट मैटर. इट कैन बी एनीथिंग, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा ही छोटा रहेगा, तो इट कैन ऑल्सो बी 3/2. ठीक है? कुछ भी, तो डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ क्या था नेक्स्ट इज मिक्स्ड, राइट? आई गेस सबको अभी तक समझ ही आ रहा है. नाउ मिक्स्ड के पहले और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम लोग. मिक्स्ड के पहले
मिक्स के पहले आपका एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आता है. कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी से आपको समझ आ रहा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से. तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर, मतलब ये जो न्यूमरेटर है जो कि हम लोग एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वी वर रिप्रेजेंटिंग इट विथ वन नंबर, राइट. और ये जो डिनोमिनेटर था ये भी हम लोग एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो अभी क्या होगा, ये न्यूमरेटर इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन. मतलब बेसिकली आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शंस हो सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो सकता है, डिनोमिनेटर नॉर्मल एक नंबर, या फिर उल्टा भी, मतलब डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन और न्यूमरेटर एक नॉर्मल नंबर, लाइक वन नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर. सो लेट्स सी एन एग्जांपल, लाइक तीनों जो भी मैंने बताया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के डिवीजन में वह देख लेते हैं. तो पहले आपका न्यूमरेटर अगर एक फ्रैक्शन पकड़ रहे विच इज 5/7, ठीक है, ये न्यूमरेटर का फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर फॉर दैट मैटर इफ इट्स 11, ठीक है, ये एक हो सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. और एक हो सकता है सिमिलर वे में, ऊपर 11 नीचे 5/7, ठीक है. और एक हो सकता है आपका जो कि दोनों ही फ्रैक्शन हो सकते हैं विच इज 5/7 एंड नीचे आपका फॉर दैट मैटर कंसिडर इट टू बी 8/11, ठीक है. सो दिस कैन बी अगेन, ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को. सो नाउ कमिंग टू मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको जैसे ये टर्मिनोलॉजी से याद रखना इज वेरी इजी. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका एक होल पार्ट होगा और एक पार्ट होगा, मतलब आपका एक होल नंबर होगा और एक पार्ट ऑफ दैट होल नंबर विल बी देयर. ओके, सो बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन. तो मतलब दो पार्ट्स है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन के, तो इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ पार्ट. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं सिनेरियो को. राम है, ठीक है, श्याम है, और for that matter Riya hai. Then there's another person named as Yash. Okay, so this four people, तो इनके पास 5 केक्स है. ठीक है, तो 5 केक्स में ये 4 लोग कैसे इसको डिवाइड करेगा. ओके, तो इसको क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1/1 each of these 4 people will take 1/1 each. ठीक है, और एक जो बच जाएगा इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा अभी, मतलब इसको तो इसको अब इन चारों में इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इन चारों को. तो अगर एक केक है, चारों में अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 1/4 समझ आ रहा है आपको, एक पार्ट सबको मिलेगा, 4 भाग का एक पार्ट सबको मिलेगा. ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकली ये केक को हम लोगों ने 4 पार्ट में ही, मतलब 4 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, और हाइपोथेटिकली इट्स अ राउंड केक. अगर स्क्वायर केक भी हो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी 4 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास 4 लोग हैं. ठीक है, स्क्वायर मतलब शेप्स का कोई रोल नहीं है इधर. ठीक है, इधर पार्ट्स का रोल है. तो इवन इफ इट्स अ स्क्वायर केक और अ रेक्टेंगुलर केक और व्हाटएवर शेप केक इट इज, हम लोगों के पास जितने लोग हैं उन लोगों में ही डिवाइड करेंगे. सो 1/4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो एक करके सबको मिल गया. सो एक इज द होल पार्ट. यहाँ पे जो मतलब जो डेफिनेशन पे हम लोग जाएंगे अगर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट, राइट. सो होल पार्ट इज दिस वन केक जो सबको इक्वली मिल रहा है, एंड 1/4 इज द पार्ट जो सबको एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट, बिकॉज दे हैड 5 केक्स. तो 1/4. So this is what is the representation of a mixed fraction. Yeah. So this is what is the representation of mixed fraction. ठीक है? I hope it's clear to all. ये हम लोग division के method से भी देख सकते हैं. If you have, for example, a improper fraction
for that matter if it's 17/14 आपके पास एक improper fraction हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 17/14 को, so this will be like 4 4s 16 आ जाता है, right? 1, so 1 क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, okay, and this 4 will come इसके नीचे, ठीक है, this 1/4, so this 4 parts and 1/4, 4 is the whole part, whole number, and this is the part of the entire thing, ठीक है. So this is how it goes. I hope it's clear. So mixed fraction is basically a combination of both the things. Okay. सब एक बार लिख दे. If it's not clear or if you want to add anything, please kindly write in the chat box as well. So now we will move forward with. Okay. Okay, clear. Okay, thank you. So now we move forward with something which is called as something which is called as a equivalent, okay, equivalent fraction. So what is an equivalent fraction? Equivalent terminology again, equivalent fraction. Equivalent fraction में क्या होता है? See the terminology equivalent, right? So if like we have seen in that particular cake as well, तो केक में हम लोगों ने 4 पार्ट किया था, तो अगर this 2 part और we were equally dividing it, right? अगर ये दो पार्ट किसी एक बंदे ने खा लिया, ठीक है, एक इंसान ने खा लिया, तो it would be like 2 part of this entire 4 parts, right? 2 भाग खा लिया, ठीक है. सिमिलर वे में अगर वही केक को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, 2 भाग में किया और एक भाग किसी ने खा लिया, तो इट वुड बी लाइक 1/2. सो इट्स काइंड ऑफ द इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल पार्ट, हम लोग इक्वल पार्ट मतलब डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है. सिमिलर वे में वो जो था, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग जब देखा ये वाला, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट, बिकॉज यहाँ पे आपका आप समझ पा रहे हो कि देयर इज अ recurring part रह जा रहा है, ठीक है. So this is how it goes, and then अभी एक पार्ट आ जाता है जहां पे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ढूंढने के लिए, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करना पड़ता है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सिंगल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर दैट मैटर, इफ वी सी दिस पर्टिकुलर thing, if this number is given, for that matter, if this 1/3 is given, to find whether this is a equivalent fraction or not, okay, so what we'll do is we'll multiply both of numerator and denominator with a whole number. So 1/3 को अगर हम लोग 2 से multiply कर रहे हैं, so it will give 2/6. Similar way में अगर 3 से multiply कर रहे हैं, you can multiply it with any numbers, ठीक है, so it would be like 3/9. So this is how it goes. So ऐसे करके we can understand कि how this is like, if it's coming under equivalent fractions or not. Okay, एक whole number के साथ हम लोग उसको multiply करके. So now let's move forward. Okay, great. So यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, मतलब छोटा सा एक पार्ट कर लेते हैं, एक सम कर लेते हैं, ठीक है, so that it gets clear कि find the equivalent fraction of 15/35 with denominator 7. Great. So यहाँ पे हम लोगों को ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है इनका, so that the denominator is 7. Okay. So now what we can do is थोड़ा सा brainstorm करिए and I'll explain it as well.
So basically, this is what it's represented. So we have basic this thing. We have 15/35, और हम लोगों को ऐसा कुछ फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 7 होगा, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू देन फाइंड आउट, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. ये वाले सम पे क्या करना पड़ता है, वी हैव टू बैक कैलकुलेट और वी हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये इसको अगर हम लोग रिड्यूस के मतलब रिड्यूस करते, मतलब डिवाइड कर देते इसको, तो वी कैन सी, और इक्विवेलेंट मतलब दोनों पार्ट को इक्वल सम के साथ वो करना पड़ता है. करेक्ट श्रुति. तो दोनों पार्ट को इक्वल नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई, जो भी सम दिया जाए उसको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है. दिस इज the thing. So isko of course you can understand, if 35 is given and you have to reduce it to 7, so you have to divide it with some number, like this number should be divided with something that will give us 7, correct. And ye to bahut hi chota number hai, it's not a complex thing. So definitely we can understand ki ye 5 se agar hum log 35 ko divide karenge to it will give us 7. So similar way mein maine pehle jab hum log dekh rahe the इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये बात मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे आपका दो नंबर जो होता है, दिस टू नंबर शुड बी इक्वल. लाइक जो आप न्यूमरेटर के साथ भी ऑपरेशन करवाओगे और डिनोमिनेटर के साथ भी जो ऑपरेशन करवाओगे, बी इट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो ये आपका इक्वल नंबर होना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि आप डिनोमिनेटर को 2 से कर दिया और आपने न्यूमरेटर को 3 से कर दिया. सो दिस वोंट बी, आप फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे. तो यहाँ पे आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो दैट आल्सो यू हैव टू डू. सो ऑलरेडी द आंसर वाज गिवन बाय सम ऑफ दीज पीपल लाइक श्रुति एंड ऑल. Shruti, Sejal and Pooja has already given the answer. So yeah, it's 3. So the number that needs to be found out, that is 3. So the fraction becomes 3/7. सिमिलर वे में अगर आपको एक रिड्यूस नंबर दिया गया है, मतलब एक छोटा नंबर दिया गया है, ठीक है. अगर आपको ऐसा दिया गया है कि सिमिलर सम, दिस इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आई एम जस्ट राइटिंग फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है. बस मैं वो लिख रही हूँ, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5, ठीक है, with न्यूमरेटर आपका 6, ठीक है. न्यूमरेटर 6 होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए, तो नीचे वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज द क्वेश्चन मार्क. या करेक्ट. So 2/5. So this would be multiplied. You can understand, आपको increase करना है ये 2 को 6 तक, तो ये 3 होगा. Of course, this will also be 3. So 6, and the number that needs to be found out, it's 15. So the fraction is 6/15. So this is how it goes. Okay. Yeah. Okay. Great. So now we will move forward. Okay. छोटा चीजें हैं जो कि इट्स वेरी, सबको पता ही है, पर देन टर्मिनोलॉजीज आप लोग जान लीजिए. इनवर्स फ्रैक्शंस क्या होता है. इनवर्स फ्रैक्शन इज नथिंग बट एक फ्रैक्शन जो दिया गया है उसको इनवर्स कर देना. इफ इट इज अ इनवर्स ऑफ द फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन का इनवर्स, ठीक है. अगर आपको दिया गया है 3/17, so you are inversing it, मतलब उल्टा कर दे रहे हो 17/13. So this is an inverse fraction. Okay, I hope it's very easy and it's very understandable. So then now आपका एक continued fraction का एक terminology आता है. Continued fraction again you'll understand better आप जब like fraction के जब मल्टीप्लिकेशन लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तब और अच्छे तरीके से इसमें समझ में आएगा. बस आप टर्मिनोलॉजीज जान लीजिए कि कंटिन्यूड फ्रैक्शंस क्या होता है, कि इट कंटेन्स एन एडिशन पार्ट, लाइक एडिशनल फ्रैक्शन पार्ट इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. लाइक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक एडिशन पार्ट रहता है. फॉर एग्जांपल सो बेसिकली इसका अगर आपको लाइक इट कंटेन्स एन एडिशन, additional fraction part.
in numerator और denominator. ठीक है, यहाँ पे for example आप देख लीजिए 3 if it's given as like 3 plus 1 by okay 1 by 1 by 2. ठीक है, this would represent a continued fraction. okay, सिमिलर वे में और एक हो सकता है कि जैसे ये डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन और एडिशन वाला पार्ट कंटेन करता है, तो सिमिलर वे में इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो इट कैन बी लाइक 1 प्लस 1 बाई 2, और नीचे तो हम लोग 1 लिखेंगे तो इट्स द सेम थिंग, तो विल डू दिस 2. ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी द सिनेरियो. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन. ठीक है, so now I hope there's no doubt. अभी तक तो बहुत ही सिंपल चीजें हम लोग देख रहे थे. ठीक है, if there's any doubt you can mention. I hope not. Okay, no doubt. You're just answering. Okay, great. So yeah, so now there's another thing called as another terminology which is आपका compound fraction. ठीक है, compound fraction में जाते हैं अभी. compound fraction आपका, तो compound fraction में क्या होता है? It's fraction of fractions. So compound fraction में क्या होता है? Fraction of fractions. So this is what a compound fraction is. मतलब आपका for example you are doing 1/4 का half. समझ में आ रहा है आपको? 1/4 का हाफ आप निकालने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर यू आर डूइंग 3/5 of this 15/18. ठीक है, ऑफ आपको सबको पता होता है कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है. ओके, सो बेसिकली आप कोई भी एक, जैसे कि अगर आप एक होल नंबर का करोगे, नॉट ये मतलब कंपाउंड फ्रैक्शन पे मतलब अगर आप एक होल नंबर का करोगे हाफ ऑफ 6, सो इट वुड बी अराउंड 3. करेक्ट. सो ये वाले पार्ट पे क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्शंस में क्या होता है, आप फ्रैक्शंस के भी फ्रैक्शंस निकाल रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा छोटा एक नंबर आपको मिलेगा विच वोंट बी 0. लेकिन ठीक है, ये 0 पे टेंड नहीं करेगा, इट वोंट टेंड टू 0. नॉट, नहीं होगा, ये बहुत छोटा छोटा नंबर आ जाएगा पर 0 तो कभी नहीं होगा. ठीक है, ये भी एक वो है. सो नाउ क्या क्या हो गया, just let's see what else we have covered. ओके, तो यहां तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया. ठीक है, इक्विवेलेंट तक. नाउ लेट्स सी सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं. सो नाउ सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस में आपका सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, कोई बोल सकते हैं? anyone has any idea कि सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस आप क्या किसको बोल सकते हो? इट्स वेरी इजी एक्चुअली, सबको पता होगा, पर एक्चुअली टर्मिनोलॉजी वाइज आप एक बार सोच लीजिए और यू कैन मेंशन इट इन सेकंड. लाइक सिंपल फॉर्म आपको क्या हो सकता है एक चीज का, क्या चीज हो सकता है एक सिंपल फॉर्म? ओके, nobody is interested. Oh. किसी को आइडिया है सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में? Okay, if n and d are relatively prime. Okay, great. सही बात है, n and d are relatively prime. ठीक है, okay, so let's see. So simple form is basically the lowest form. ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे श्रुति ने जो बताया, that's a very गुड काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. ये तो है ही, पर अगर हम लोगों को बेसिक से जानना है, मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल फॉर्म क्या है, बेसिक बेसिक जानना था मुझे. जो भी, मतलब आप लोगों ने थोड़ा एडवांस ही बता दिया, तो बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट. सो बेसिकली हाँ, इट कैनॉट, एनएनडी कैनॉट बी एनी स्मॉलर. करेक्ट करेक्ट श्रुति. एनएनडी को और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते. सिंपल फॉर्म मतलब एकदम अल्टीमेट छोटा हो गया, अभी इसको और छोटा नहीं कर सकते. तो इट्स लाइक द लोएस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है. नाउ इट हैज, तो बेसिकली यहां से हम लोग ये पार्ट अगर बहुत ही छोटा हो गया है, तो इसका कोई नो कॉमन फैक्टर विल बी देयर. ओके, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अभी, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स 1. एक के अलावा, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा ये. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर है आपके पास 36/54, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा नंबर है और इनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. करेक्ट. तो इसको अगर हम लोग छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वी विल फर्स्टली रिड्यूस इट विथ 2. ठीक है. अगर 2 से रिड्यूस कर रहे, इट विल कम एज 18 and 27. करेक्ट. 27, 27, 1, 4, 14, 1, हाँ 54. करेक्ट. तो नाउ ये वाले फॉर्मेट से हम लोगों को समझ आ रहा है कि और एक और छोटा हो सकता है, क्योंकि 18 भी, तो अभी 18 का भी काफी फैक्टर्स है ना, और 27 का भी है, 3 है, 9 है. करेक्ट. सो नाउ 18 को हम लोग अभी 9 से करते हैं, क्योंकि 18 तो 9 से रिड्यूस हो सकता है और 27 भी 9 से रिड्यूस हो सकता है. सो 9 से अगर करते हैं इन दोनों को, तो इट वुड बी 2 और नीचे 3. सो अभी आपको समझ आ गया कि नाउ 2 हैज नो फर्दर फैक्टर्स. सिमिलर गोज फॉर 3. इन दोनों का ही एक्सेप्ट 1, देयर इज नो अदर काइंड ऑफ फैक्टर्स, 1 और itself. ठीक है. दिस इज हाउ इट गोज. द सिंपलेस्ट फॉर्म है लोएस्ट फॉर्म. ठीक है. बहुत ही इजी है. अभी अच्छा, ओके. सो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाता है आपका कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. शायद देख लेते हैं एक बार. अच्छा, ओके. सिंपल फॉर्म कर लिया हम लोगों ने. नाउ आई थिंक देयर विल बी अ लाइक एंड अनलाइक, like and unlike fractions. Okay, so this is done. Like and unlike fraction. Okay, so now let's move into like the terminologies of like and unlike fractions. Now in this era of like social media and all, we are all aware about this two terms, right? Like or unlike. Right. So again, it's nothing related to this, but then just saying. So yeah, so let's move forward with like and unlike. ठीक है. सो लाइक इज बेसिकली आपका सेम डिनोमिनेटर होता है. ठीक है. फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर. मतलब सेम बेस रहता है. ठीक है. बेस आपका सेम रहेगा. 1/2, 3/2, 4/2, 5/2. ठीक है. 2/2 तो 1 होता है. सो 6/2. सो सेम बेस रहता है. सो सिमिलर वे में जब हम लोग सोशल मीडिया से अगर रिलेट करें, तो लाइक इज बेसिकली जब आपका थॉट प्रोसेस, आपका बेसिक फंडामेंटल्स, आपका आइडियोलॉजी बेस आपका अगर किसी के साथ मैच कर रहा है, तो यू पुट अ लाइक ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट. एंड अनलाइक सिमिलरली उल्टा होता है. अनलाइक में देयर इट वोंट बी लाइक दैट. इट समथिंग व्हिच इज नॉट अ लाइक fraction, it is an unlike fraction. ठीक है. So just ulta, for example, 7/27, 7/28. ठीक है. So these denominators are different. एक है 27, एक है 8. आपका बेस सेम नहीं है, तो ये आप
लाइक फ्रैक्शन में नहीं डाल सकते, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन के और एक एग्जाम्पल में आप ये भी बोल सकते हो कि 1/15, 2/15, 3/15, ठीक है। सब मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा यहाँ पे, सेम डिनोमिनेटर। और अनलाइक में नो डिनोमिनेटर विल बी सेम। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सो नाउ छोटा सा ही था, तो अभी आ जाते हैं हम लोग कंपेयरिंग फ्रैक्शन पे। आई होप इट्स क्लियर। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आज डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दीज टर्मिनोलॉजीज आर बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी। सबको तो बेस मतलब आइडिया तो था ही, पर शायद से टर्मिनोलॉजी तो जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर ले रहे हैं, इसीलिए। सो नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, मतलब कंपेयरिंग, अगर किसी चीज को कंपेयर कर रहे, ए और बी को अगर आप कंपेयर कर, मतलब अगर किसी भी चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, तो दो चीज तो पहले रहना चाहिए, है ना। तो पहले ए और बी दो ऑब्जेक्ट तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे में आपका दो फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका 1/2 एक है और एक 1/3 है, ठीक है। सो इन दिस 1/2 और 1/3 आपको एक तो क्या मतलब कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो, अगर हम लोग कि किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं इन आइडियल सिचुएशन, लाइक इन आई नॉट जस्ट इन आइडियल सिचुएशन बट इन जनरल, अगर किसी दो चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हम लोग यही देखते हैं कि वो हमसे ज्यादा अच्छा है, लाइक ग्रेटर है, या फिर नॉट नॉट दैट ग्रेट, या फिर छोटा है, मतलब स्मॉलर है, या फिर थोड़ा कम ग्रेटर है, राइट, लेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैसे ही फ्रैक्शन में ही फ्रैक्शन में भी दो फ्रैक्शंस में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है या लेस ग्रेटर है या व्हाटएवर इट इज, राइट। सो सिमिलर वे में अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो दिस इज लाइक टू पार्ट्स में एक पार्ट, और यहाँ पे है आपका 3 पार्ट्स में एक पार्ट, 3 पार्ट में एक पार्ट। तो व्हाट डू यू थिंक, विच वन विल बी ग्रेटर? ऑफ कोर्स दिस वन, है ना। आई आप लोग समझ पा रहे हो, राइट? ऑफ कोर्स दिस विल बी ग्रेटर। ठीक, ऐसे देख लीजिए कि अगर दो एग्जाम हुए आपके और एक एग्जाम में आपने थोड़ा कम मार्क्स लाए, लेस न मार्क्स आया आपका, ठीक है। तो यहाँ ये ज्यादा अच्छा होगा, लाइक अच्छा मतलब अच्छा एज इन ग्रेटर होगा, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन के फैक्टर होंगे आपके लिए, या फिर अगर 3 एग्जाम हुए और आपने उसमें एक ही एग्जाम में यहाँ पे मोर मार्क्स कर देते तो और ज्यादा अच्छे तरीके से लॉजिक बैठेगा, ठीक है। पर दिस इज अ मोर, दिस इज मोर, ओके, इट इज, ठीक है। ये आपका मोर कर देता है, आपको वन एग्जाम में मोर मार्क्स आए, और यहाँ पे आपको वन एग्जाम में मोर मार्क्स आए 3 एग्जाम्स में। सो ऑफ कोर्स दिस वुड बी मच ऑफ अ लाइक सेटिस्फैक्टरी फैक्टर फॉर यू कि 2 एग्जाम में एक एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आए और एक एग्जाम में थोड़ा सा कम आया है, कोई बात नहीं। पर अगर 3 एग्जाम में आपको एक एग्जाम में ही ज्यादा मार्क्स आए और 2 एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ही मतलब कम मार्क्स आए, कंपेरेटिवली कम मार्क्स आए, तो आपको लगेगा, आपको थोड़ा सा लेस सेटिस्फैक्शन होगा, आपको थोड़ा सा इंफीरियर लगेगा कि मतलब अरे 2 सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में आपको और मेहनत करना पड़ेगा। सो इफ यू सी इन दैट वे, तो वैसे भी देखा जाए या फिर खाने के पोर्शन से भी देखा जाए, अगर आपके पास एक केक है और आप मतलब 1/2 ऑफ दैट केक यू हैव गिवन टू समवन, ठीक है। अगर आपके दोस्त को आपने एक हाफ दे दिया तो आपके पास हाफ ही पड़ा है ऑलरेडी। और अगर आपके पास एक केक है और आप 3 दोस्त थे और आपको वन वन 1/3 पार्ट आपको किसी एक को देना पड़ गया, मतलब और एक पार्ट भी आपको किसी को देना पड़ गया, तो आपको ऑफ कोर्स देयर विल बी लाइक लेस ऑफ एडिबल फॉर यू, ठीक है, कम होगा आपके पास। तो वैसे देखा जाए भी तो ये भी सिमिलर होता है। तो दिस इज 1/2 इज बेसिकली ग्रेटर,
than this 1/3. So now अगर हम लोग अभी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे like fractions को, comparing like fractions. Am I audible, guys? Hello. Your system. Source may affect your audio quality. So closing some application to improve. Okay. Yes. Okay. Great. Thank you. Okay. Actually, there was some notification that popped out on my screen that my audio quality might get lowered. So yeah. So now compare like fractions. So comparing, if you have to compare like fractions, so this would be like if fractions are like fractions are basically same denominator. तो सेम डिनोमिनेटर में अगर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इफ दिस इज द सिनेरियो 3/8 इज देयर एंड 5/8 इज देयर. ओके, तो यहाँ पे अगर करते हैं अभी 8 पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. सिमिलर वे में और एक पार्ट में 8 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 पार्ट ये वाले पे और यहाँ पे 5 पार्ट. ठीक है, सो काइंडली लाइक आप लोग एक बार लिख लीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्रेटर होगा आपके हिसाब से, लाइक विच फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. ओके, 5/8 और 3/8. तो ये छोटा नंबर्स है, लाइक दीज आर लाइक वेरी स्मॉल नंबर्स, सो इट्स वेरी इट्स ऑलमोस्ट आपके आंखों के सामने है. ठीक है, 5/8 इज ऑफ कोर्स इट वुड बी ग्रेटर देन 3/8, राइट. सिमिलर वे में अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अनलाइक को, अनलाइक में आपका अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है आपको याद है कि डिनोमिनेटर तो सेम नहीं होगा. अभी डिनोमिनेटर में आपका आ गया कुछ भी आ सकता है, लाइक 1/3 एंड फॉर दैट मैटर 1/5. ठीक है, यहाँ पे अभी क्या होगा 1/3 और 1/5 में वही चीज है. नेक्स्ट पेज में जाते हैं. ठीक है, 1/3 था और 1/5 था. 1/3 में आपको 1 पार्ट ऑफ दिस 3 पार्ट्स, राइट. एंड यहाँ पे आपका हो गया 1 पार्ट ऑफ 5 पार्ट्स, है ना. दिस इज दिस एंड दिस इज दिस. तो यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक विच वन विल बी ग्रेटर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ग्रेटर या स्मॉलर के हिसाब से. ओके, ग्रेटर इज 1/3, करेक्ट. ओके, 1/3 is of course it will be greater than 1/5. okay, तो यहाँ से हम लोग ये चीज तो of course डिड्यूस कर सकते हैं कि if two numbers, if basically the numerator is same in two fractions, the fraction with smaller denominator आपका ग्रेटर होता है, इज ग्रेटर. तो जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर आपका सेम था, 1 था, और जो नंबर का लाइक जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर हुआ वही आपका ग्रेटर हुआ, 1/3 आपका ग्रेटर हुआ, correct. So similar, which is vice versa in the case of like fractions. Like fraction में थोड़ा सा अलग था, right.
this is about it. I think और कंपेयरिंग हो गया. कंपेयरिंग में और कुछ था नहीं. Does anyone remember anything else which you can mention here? So comparing like and unlike fraction is also done. So now addition and subtraction of fraction is left. So like and unlike fraction is done. I hope it's clear. Addition में क्या होता है और subtraction में क्या होता है? Let's see. Okay, before addition and subtraction we can see another thing. Like फ्रैक्शन का बेसिक जो फंडा था पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन एक आ जाता है, नंबर लाइन, करेक्ट. नंबर लाइन में अगर हम लोगों ने देखा था कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स द सीरीज ऑफ नंबर्स. सो यहाँ पे अगर 1 0 1 फिर 2 इक्वल पार्ट में आएगा, राइट. सो अगर इसके बीच में लाइक 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स, मतलब बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, विच विल नॉट टेंड टू 1 ऑल्सो एंड विच विल नॉट टेंड टू 0 एज वेल. ये मिडिल में जो भी नंबर आपका लाई करेगा दैट वुड बी इन अ फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शंस. सिमिलर वे में 1 और 2 के बीच में भी जो भी नंबर टेंड टू 1 या 2 नहीं करेगा, इन बिटवीन जो भी नंबर रहता है दैट इज व्हाट इट इज फ्रैक्शंस बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर 0 से 1 के बीच में कैन बी 1/2, ठीक है, इट विल लाई समवेयर हियर 1/2, है ना. आई होप इट्स लाइक आप लोग समझ पा रहे हो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज हाउ इट वुड मूव. अगर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज व्हाट वी वर सेइंग 1/3, तो 1/3 1/2 के और इस तरफ आ जाएगा 1/3. ओके, अगर हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2/3, सो इट वुड कम समवेयर इस तरफ, इट वुड बी समवेयर लाइक 2/3 और 1 विल बी बेसिकली आपका 3/3. समझ आ रहा है आपको? 1 विल बी 3/3, करेक्ट. सो दिस इज हाउ नंबर लाइन पे आपका रिप्रेजेंटेशन होता है. सो नंबर लाइन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट योर फ्रैक्शंस, ठीक है, series of fractions as well. So now let's move forward with addition. I think, does anyone want to add anything here? या फिर किसी को कुछ question है, that also can mention. Okay. So fractions के addition का जो like कैसे करते हैं पहले समझ लेते हैं. Fractions also we can, of course we can add fractions, right? अगर आपके पास 2 half cake है, like 2 half of 2 केक का half है, तो ये आपका, आप अगर उस दोनों को जोड़ लोगे like, तो it would be somewhat like this, correct? This would be 1 plus 1 2, it would come as 1 whole cake. So similar way में अगर आप 1/4 of something ले रहे हो, something for that matter कुछ भी आप ले रहे हो, 1/4 of anything, ठीक है. Let's consider as juice, ठीक है. ये आप 1/4 of juice and 1/4 part of water ले रहे हो, ठीक है, and you are calculating it. So of course इन दोनों का LCM आपका 4 and then it would be 1/1 plus 1, correct, क्योंकि दो denominator same है, so it would come as 2/4. So this reduction मतलब simple form में half आ जाएगा. So this is how addition goes. And subtraction में of course आपका एक subtraction होगा और आपको वो मतलब ये function पे subtraction के हिसाब से करना पड़ेगा. So now let's see कि अगर आपका unequal या फिर अगर आपका दो unlike fractions रहे तो उसमें आप लोग क्या करेंगे. ठीक है, ये तो एडिशन का हो गया. नाउ सब्सट्रैक्शन से देखते हैं वो अनलाइक वाला, ठीक है.
सब्ट्रैक्शन से अगर आप लोग अनलाइक वाला देखने की कोशिश करोगे, इफ यू हैव दिस 5/6 वन नंबर एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट विद फॉर दैट मैटर 3/4, तो ये अनलाइक में क्या करना पड़ता है? देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। एक होता है आपका एलसीएम निकाल के, ठीक है। आप एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकाल के यू कैन कंटिन्यू एंड यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू डू इट दैट वे, देयर इज अनदर मेथड। आप उसको लाइक मल्टीपल्स में निकाल के यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन कैलकुलेट इट अकॉर्डिंगली। मैं दोनों दिखा देती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। एलसीएम निकाल के आप पहले हम लोग ये देख लेते हैं आपका इक्वल, जो हम लोग अभी कर रहे थे ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के कैसे करते हैं। दो अप्रोच है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला भी कर सकते हैं और वी कैन डू द एलसीएम वन एज वेल। पहले इक्विवेलेंट वाला देख लेते हैं बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू। सो पहले क्या कर सकते हैं कि इसको इसको पहले इक्विवेलेंट पे मतलब डिड्यूस कर लेते हैं। सो वी कैन इक्विवेलेंट पे अगर 6 को कर तो 2 और इसको सिमिलर वे में इक्विवेलेंट पे लाते हैं, ठीक है। ये बेस तो को इक्विवेलेंट पे लाना है, तो इफ यू हैव टू डिड्यूस इट टू इक्विवेलेंट बेस, तो अगर 6 into 2 है, it's 12, so basically it would be 3. Again it would be 3. So now 10/12, or this would be 12/9, 9/12, right? 12 base पे आ गया, so 12 आ गया. So of course you have to put it in a form in which it would be like fractions के मतलब form में लाना पड़ेगा. So this was in a like fraction form, like के form में था, तो इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके आप लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में ला दो। एक ये मेथड होता है दोनों को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करने की कोशिश करोगे, so it would be 12 and again 9 minus 10, 10 minus 9, so it will be 1/2. So this is about it. और अगर आप सिमिलर को अगर आप एलसीएम करके करने की कोशिश कर रहे हो, so let's take another unlike fraction, जहां पे आपका एक हो सकता है कि 2/5 is 2/5 is there plus आपको 1/3 करना है. So again this is in format of unlike fraction. तो पहले तो आप इसको of course you can do it with the equivalent part, मतलब equivalent करके आप इसको कर सकते हो. तो equivalent पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this would be 12, 2 into 3, 5 into 3, and इसको आपको 5 से करना पड़ता है, into 5 into 5, मतलब क्रिस क्रॉस हो जा रहा है. समझ आ रहा है ना, ये 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया और दिस यू आर डूइंग दिस साइड. दिस इज द इक्विवेलेंट वाला, इक्विवेलेंट के फॉर्मेट में लाके आप जो भी फॉर्मेट में लाके आप डिड्यूस कर रहे हो. सो दिस इज देयर. अनदर इज देयर, दैट इज एलसीएम निकाल के. सो नाउ एलसीएम वाला देखते हैं कि क्या होता है. एलसीएम वाले पे भी आपका सिमिलर होगा कि 15 हो गया एंड दिस वुड बी 3, so this would be again multiplied with 3, so 6 plus this would be 5, so 1 5 is 5, this will be 11 5 5 15. ठीक है, यहाँ पे भी बेसिक फंडा यही लग रहा है, लाइक यहाँ पे भी आपको करना यही हो रहा है, बस यहाँ पे आप लिख के कर रहे हो या यहाँ पे आप मेंटली कर रहे हो वो चीज. ठीक है, चीज आप सिमिलर ही है, इसीलिए सिमिलर आंसर भी आपका आ रहा है. ठीक है, दिस वुड ऑल्सो कम एज 11/15. ठीक है, आंसर इसीलिए सिमिलर भी आएगा क्योंकि आप सही चीज सेम ही कर रहे हो, पर बस यहाँ पे आप उसको एक्सपैंड करके और दिखा के कर रहे हो कि क्या कर रही हूं मैं, और यहाँ पे आप मेंटली वो मतलब पूरा कैलकुलेशन कर ले रहे हो. ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी. सिंप्लीफाई 3/5 minus 7/20. जल्दी से आंसर लिख दीजिए आप, जो भी मेथड से आपको करना है. यू कैन डू इट, you're open to do it. Just
क्विकली राइट द आंसर सो दैट इक्विवेलेंट मतलब वो करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. Quickly, whoever wants to solve it out because it's very easy. Some people might not want to do it. One by four. Shruti has given an answer. 1/4. Correct. तो एक ने आंसर कर दिया, मैं भी दिखा दे मतलब कर देती हूँ so that everyone else can understand. तो ये mentally वाला मैं नहीं कर रही, मतलब LCM निकाल के वो तो easy है. हाँ हाँ correct. सेजल श्रुति you're correct. So यहाँ पे आप ये कर लीजिए, मैं पूरा एक्सपैंड करके आपको दिखा देती हूँ कैसे कर रहे हैं. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इफ वी आर काइंड ऑफ इसको अगर सेम फॉर्मेट में लाना है 5 को आपको चेंज करना पड़ेगा. करेक्ट, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी इट्स अ ग्रेटर फॉर्मेट ऑफ दिस थिंग. सो आपको ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फॉर्मेट में लेके जाने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आपको करना है वो आपको करना पड़ता है. राइट, किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते यहाँ पे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को इक्वल नंबर से आपको वो करना पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ दिस वुड बी ऑफ कोर्स दिस इज 12 एंड दिस इज 20. आगे आपका लाइक तो दिस 20 बेस सेम आ गया. सो नाउ 20, this would be 12 minus 7. So this is 5. 7 minus 12 is 5. 20. Of course, this is 1/4. So this is how it goes. So ये chapter तो आपका complete है. ठीक है. आपका कुछ sums है, आप you can do it. You can consider doing it on your own. जैसे mixed fraction पे अगर आपको multiplication और subtraction करना है, so similar way में mixed fraction आपका जैसे अगर ये number है 4 2/5 is there and then there's this 2 1/5. इसको आप कैसे करोगे? तो पहले mixed fraction को mixed fraction को पहले देख लेते हैं. mixed fraction को कैसे deduce किया जाता है. So this is 4 2/5. तो इसको आप अगेन there's two way of doing it. ठीक है, two ways of doing it. पहले तो आपको पता ही है कि ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है. So you can write it as this. एक सेकेंड. किसी को अगर पता है you can continue doing it. I'll just add a page and then I'll solve it. Okay. So this was the kabhi do way of doing it. Okay, Shruti has again answered. Let's see. So this is 4. This is 4 2/5 was there and another number was there. और एक number क्या था? 4 2/5 and 2 1/5. ठीक है. 4 2/5 minus 2 1/5 था ना. तो इसका अगेन दो वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि ये एक आपका होल नंबर है, ये आपका एक होल नंबर है. तो ये आपको समझ आ रहा है कि 4 plus 2/5 है ना, और इसमें भी 2 plus 1/5 है. करेक्ट. तो आप होल नंबर को, ये दो होल नंबर को एक साथ ले लीजिए. 4 और 2 का साइन आपका माइनस है, तो ये ले लिया आपने एक साथ, और ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर लिया. फ्रैक्शन वाले को सॉल्व आउट कर लिया, और ये तो आपका 2 होगा, प्लस फ्रैक्शन वाले को सॉल्व आउट कर लिया आपने 5. दिस इज
oh, okay, oops, there's again, ये mistake हो सकता है. So this sign, correct? तो ये आपका 2+1/5 तो है, पर दिस इज अगेन दिस पार्ट, लाइक ये एक पार्ट है, ये एक साथ है. तो इसको अगर आप ओपन कर रहे हो, इसको अगर आप अलग अलग कर रहे हो, तो इसका भी साइन चेंज होगा. ठीक है, this would change its sign. So now 5 is there, and then this 2 minus 1 will be there, of course, correct? So now 2 plus 1/5. So now solve it. 2 plus 1/5, so it would be 2 plus 1/5 is basically 2, this thing, 2 1/5. This is the answer. Or else you can write it as 11/5, which is what Shruti has given the answer as. And another way of doing is, इसको पहले ही आप ये कर लीजिए, पहले ही आप मूव करवा लीजिए इसको. ठीक है, this one यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि इसको पहले ही आप फॉर्मेट चेंज कर लीजिए. तो यहाँ पे क्या होगा, और एक नंबर से देखते हैं, सो दैट एक ही नंबर से नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक 8 1/4. तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 4 ले लिया, और ये ऐसे होता है 8 into 4 plus 1. ठीक है, ये आपका आ जाएगा 32 33/4. ओके, एंड अनदर थिंग इज, आपका और एक नंबर पकड़ लीजिए 2 5/6, जो कि पहले का भी शायद सेम था, जो भी है. इसको हम लोग कर सकते हैं कि 6 2 into 6 plus 5. तो इट वुड बी आपका 12 plus 5 is 17 6. तो ये आपका आ गया 33/4. और फॉर एग्जाम्पल इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ऐसे भी आप कर सकते हो. पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप ये फॉर्मेट में प्रॉपर, लाइक एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ला दिए. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ला दिए. आई होप आप अभी तक तो सबको क्लियर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपका 1 से कम ही होता है, उसका जो वैल्यू. And then improper fraction is absolutely opposite to that, like denominator आपका less होता है. So आप एक improper fraction के format में कर लिया अपने दोनों को, and then you're subtracting it easily. ठीक है, does anyone have any question? तो यहाँ पे अगर करना है तो this one you have to again change it. So ये 12 होगा, 99 minus 34. This would be 65/12. If you have to convert it into again a mixed fraction, so just you have to divide it. Divide करके आपका आएगा again 65 5 5 5/12. Okay, so this is the mixed format, this is the improper format. और यहाँ से आप एक observation आप you can understand definitely कि mixed fraction हमें कभी भी, mixed fraction is again reducing to improper fraction. improper fraction पे आ जा रहा है. Okay, and next class हम लोग जब decimal करेंगे, यहाँ like इसका एक स्टेप ऊपर जब जाएंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक अगर कोई, लाइक इसमें अगर 1/2 था ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, सो ये फॉर्मेट एक आ जाता है आपका डेसिमल का फॉर्मेट पे, आप इसको ला सकते हो. ठीक है, ठीक है, इसका मिक्स्ड फॉर्मेट इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, आप इसको मिक्स्ड फॉर्मेट में, मतलब ऐसे 2/5 इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो, so 1 is of course lesser than 2, so you have to take a number which will be kind of, उधार लोगे आप कुछ एक पर्टिकुलर एक डिनोशन देके, डॉट देके, लाइक डेसिमल देके आपको एक 0 लाइक लेना पड़ता है, and then only you can move forward and do it.
you can then only you can move forward and convert this particular fraction into something, into a decimal or something. ठीक है, तो यहाँ से आप यही समझ पाते हैं कि हम लोग यही समझ पाते हैं बेसिकली कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो ऑफ कोर्स हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही ला सकते हैं, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग एक मिक्स्ड फ्रैक्शन पे कन्वर्ट, मतलब इधर वे में आप लोग मूव करवा सकते हो, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में आ गया या इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड में ला दिए। आई होप इट्स क्लियर। फ्रैक्शन में ज्यादा कुछ था नहीं, आई मीन ज्यादा कुछ एज एन टर्मिनोलॉजीज थे और ये सारे बेसिक लाइक बेसिक आपका एरियाज ही था जो कि हम लोगों ने अभी जान लिया। If you have again any doubt, you can ping me up or you can mention it in the basic foundation group, or if you have anything extra to add on to that also, you could have done it in this class, or if you have anything else that you might read on, okay, that you can mention it in the next class as well. So next class we'll move forward with decimal as planned. So abhi to hum logon ne jo bhi मतलब जो भी था आइडिया में वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया आई गेस। हाँ, एडिशन वगैरह। हाँ, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्लियर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट, इन दोनों, इन सारे के बीच में भी हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें जाना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस जाना। देन वी आल्सो केम टू नो अबाउट आपका इनवर्स फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारा बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि बस जानना इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन ऐसे याद रख सकते हैं कि एक फ्रैक्शन को हम लोग और कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब और ही उसको तोड़ दे रहे हैं, मतलब और भी कंपाउंड करके उसका फॉर्मेट ला रहे हैं, तो फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन इज बेसिकली कंपाउंड फ्रैक्शन, वैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपाउंड भी पढ़ लिया एंड देन इनवर्स पढ़ लिया, then again we have learned about continued, है ना, और क्या किया हम लोगों ने, this things we have done. Okay, so simplest form भी जान लिया, unlike like fractions जान लिए, then comparing unlike and like fractions, addition subtraction of fractions as well. So next class we'll move forward with decimal. So these 1 2 3 4 5 6 7 8 were included in from NCERT, और बाकी का जो भी 3-4 कंपोनेंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस करा, जैसे कंपाउंड, इनवर्स, कंटिन्यूड, ये सारा आपका थोड़ा सा मतलब एडवांस फॉर्मेट्स थे जो कि मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि फ्रैक्शन इज अगेन इट्स वेरी बेसिक, ऐसे डायरेक्ट सम्स तो नहीं आते कभी भी, बस जानना, एंड दिस इज रिक्वायर्ड. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग, थैंक यू ऑल फॉर आंसरिंग एज वेल, फॉर रिस्पॉन्डिंग.